2a square minus 5 is ab plus 2b square. A is given as root 5 plus root 6 plus root 5. B is root 6 minus root 5. Similarly, in 121, 3a square plus 4ab minus 3b square, a and b are given, right? We are going for first two questions. Sir, first answer 49 hours. Very good. Go for the second one. Very good. Yes, Prince, you want to ask anything? No, sir, just by mistakenly. Done. May I start? Very good, Aman. Last 1 minute, everyone.
First question is given in terms of 2a square minus 5ab plus 2b square, and similarly the second one, right? We know that if want to solve this, basically I have to use the formula 2a square 2b square minus 4ab. 2 common out, this will be a minus b the whole square minus ab, right? So a minus b. So from these two, I write down a minus b is 2 root 5, right? And square of this. So this is 4 into 5, 20. 2 into 20 minus a into b. If I'll multiply both the number, I'm getting 1. Right? This is 40 minus 1 will be 39. How many of you got the right answer? एक और इसमें 3, right? Okay, go for the second one. In this question, it's 3a square plus 4ab minus 3b square. And a and b are given. If I'll multiply with the conjugate of this, I'll get root 5 plus root 2 the whole square. That will be 7 plus 2 root 10 upon 3. From this, 7 minus 2 root 10 upon 3. This is a and b, right? If I want to solve for a plus b, this is 14 by 3. A minus b is 4 root 10 by 3, right? A into b is 49 minus 40 upon 3. That's 9 by 3 is 3 only. All the values we have, right? A plus b, a minus b, and a into b. These two, I'll take 3 a square minus b square plus 4ab. This is 3 a plus b is 14 by 3 into a minus b is 4 root 10 by 3 plus 4ab is nothing but 3. 56 root 10. A into B should be 49 by 40 divided by 9. Yes, sir. Yes, there is one more 3 is there. So you are getting 1 there, right? So this is by 3. So you are getting something root 10 by 3 plus 4, right? So these are simple questions, but obviously you have to be perfect with your simple calculations and all, right? First 2 questions, right? Now we are going for question number 122. Right? And question number 123. Sir, the screen isn't. Just a minute. We're getting this. 122 and 123. 4a square. 122 is 4a cube plus 2a square minus 8a plus 7. A is given as root 3 plus 1 by 2. And 123 is a plus b minus 1 upon a minus b plus 1. A and b are given.
careful. Both the questions are very good question, and बहुत अच्छा understanding आएगा कि exactly what you have to do, right? So try this. Very good, Ganesh. Nischal, very good.
Okay, XY you have to, okay, चल start करता हूँ from the first one, right? A beautiful question and beautiful arrangement of the numbers, right? A is given and you have to find value of this, right? How to solve this? Look, in this question, what we have to do, we have to find value of the given, right? 4a cube and blah, 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 blah. So what we can do, right? A is given as this value. So we can write this A as 2a minus 1 is equal to root 3. Squaring both sides. This is 4a square minus 4a plus 1 is equal to 3. Or this will be 4a square minus 4a minus 2 is equal to 0. Or 2a square minus 2a minus 1 is equal to 0. Right? This is the first thing what we can do. And I'm getting a beautiful number set for this, the quadratic form of this. Right? ये इसे मैं preserve करता हूँ. Right? This is very important thing. Right? And with the help of this, I have to find value of this, right? इसके help लेने हैं मेरे को, and with the help of this, I have to find value of this. So what we can do? So what we are doing, just taking this number 4a cube plus 2a square minus 8a plus 7. We have to divide this by 2a square minus 2a minus 1. I know this is 2a, so this becomes 4a cube minus 4a square minus 2a minus plus cancelling this 6a square minus 6a plus 7. If I'm taking this as 3, so this will be 6a square minus 6a minus 3 minus plus this will be 10. So exactly what we are getting. We are saying that this value 4a cube plus 2a square minus 8a plus 7, we can rewrite this as 2a square minus 2a minus 1 into 2a plus 3 plus 10. Since we have already find this value 2a square minus 2a minus 1, this value, and this value is giving us the value 0, to 0 into some value will be 0, and this is 10 only. So ultimately we are finding some value 10. Note down everyone and careful. अगर गिवन हो you don't have to find a की values put करके find नहीं करनी है. a के पहले हमें एक relation establish करने हैं, और relation establish करने के बाद it's easy to divide the function and get the answer. Oh, सर Yes. सर अगर a की वैल्यू निकाल के भी करेंगे तो अलग आएगा फिर? अलग क्यों आएगा बेटा? नहीं मतलब a दिया है, फिर उसको पहले स्क्वायर करके क्यूब करके वैल्यूज निकाल के उसमें पुट करेंगे तो यही आएगा सर? हाँ, मतलब अलग क्यों आना चाहिए? जो इक्वेशन सॉल्व करना है आप तो किसी तरह भी कर सकते हैं. ओके सर. बट उसमें बड़ा क्वेश्चन होने पर आपको दिक्कत जाएगी, पावर 4-5 होने पर, इसलिए ये तरीका रखा जाता है, इसमें यू विल गेट द आंसर वेरी इजी. ओके सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर एक मिनट.
Yes, sir, done. ये जो क्वेश्चन गिवन है a प्लस बी एंड राइट दिस इज गिवन, अब इसे कैसे सॉल्व करूं, या मतलब क्वेश्चन में बहुत ही अलग सा सब कुछ दिख रहा है, राइट? सो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, राइट? जो हमारे पास गिवन, व्हाट वी हैव टू फाइंड a plus b. So if I'll write this one, इसे मैं लिखूं a plus b minus 1 upon a minus b minus 1. एक सिमेट्रिक तो मेरे को मिल रही है कि one side there is a, so a is given something like this, and b minus 1, and b is given. So if I'll subtract 1 from this, root xy plus root x upon root xy minus 1 with minus 1, taking this thing, I'm getting root xy cancel. Isn't it? So xy cancel, right? So after cancelling this xy, we are getting root x plus 1 upon root xy minus 1. Right? This is b minus 1. So a is root x plus 1 upon root xy plus 1, and b is this. If I'll divide both the numbers, right, a upon b minus 1, so what I'm getting, a upon b minus 1 means under root xy plus 1 upon under root xy minus 1. Hope everyone is getting this. ध्यान से note down, because next step we can write down the answer. सर a divided by b minus 1 क्यों किया सर? अभी बताऊंगा बेटा. सर a डिवाइडेड बाय b माइनस 1 तो रूट एक्स वाई माइनस 1 अपॉन रूट एक्स वाई प्लस 1 आ रहा है, उल्टा आएगा इसका. उल्टा आ रहा है क्या? एक मिनट चेक हाँ कर लूं. अच्छा ओके, b माइनस 1 में माइनस नीचे दिया हुआ है ना, राइट? तो b Yes, sir. माइनस 1 में ऊपर हो जाएगा. थैंक यू बेटा. राइट, b minus 1 में, and this will be plus. राइट? तो क्यों किया है सब? राइट, ध्यान देना. I'm using componendo and dividendo, means a plus b minus 1 upon a minus b minus 1. Similarly, I write this will be twice of under root xy upon this minus this will be twice of this, right? So I'm getting a plus b minus 1 upon a minus b minus 1 as under root xy with minus sign. यूज सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. उसके लिए मैंने इसे तैयार किया था, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर, राइट? दैट्स द रीजन आई हैव यूज्ड दिस. होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. तो क्वेश्चन में काफी अच्छे चेंजेस होते हैं, इसलिए मैंने आज का एक ये सेशन रखने की कोशिश की. मैं वैरायटीज थोड़ा सा आपको अपने सामने दिखा सकूं, आप परेशान भी ना हो, और बहुत सारे वेरिएशन भी हम लोग एक साथ में कर पाए. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या किया हमने? कंपोनेंडो डिविडेंडो होता है बेटा कि if the numbers are given in the form of a by ये b is equal to मतलब 3, उधर ऊपर क्या किया? ये आता है, ऊपर क्या किया वो समझा नहीं. a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d. This is called componendo and dividendo, right? अब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो मैं कहीं पर भी अप्लाई कर सकता हूँ व्हेन आई हैव टू गेट द आंसर और थोड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं. तो ऊपर क्या किया? तो ऊपर ये किया कि मेरे पास a अपॉन b माइनस 1 गिवन था एक तरफ, राइट?
एंड सेकंड में अंडर रूट एक्स वाई -1 अपॉन अंडर रूट एक्स वाई प्लस 1 गिवन था। इसमें मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया, मीन्स ये मेरा ए का ए है, ये मेरा नीचे वाला बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा डी हो गया। ए प्लस बी करूंगा तो ए प्लस बी मीन्स बी -1, ए माइनस बी करूंगा तो ये आ गया, ए प्लस बी करूंगा तो रूट एक्स वाई -1 दोनों कैंसिल होके ये बनेगा, एंड जब इसे माइनस करूंगा तो दिस विल बी -2। द यूज ऑफ CND componendo dividendo। Sir, can you scroll up? समझा। Done। No, sir. Sir, done. Done, sir. Okay, now you are going for right, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ आपको। आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 124 एंड 125, राइट। दोनों बहुत अच्छे अरेंजमेंट है नंबर्स के, सो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। यू कैन सी दिस, राइट। बी
सर वो 125 क्वेश्चन में x की पावर्स बता दो ना, क्लियर नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड वाले में भी एक्स स्क्वायर है। ओके, मैं स्टार्ट हो गया सभी का। Let's start. Go for 124 ना, केयरफुल, ध्यान देना ना। 124, जस्ट मिनट, नोट कर लो क्वेश्चन। वन 124 नॉट बैड। काफी आंसर में एक छोटा सा कैच है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड ये कैच को।
बट मैंने कोशिश की है यही कंपोनेंडो डिविडेंडो को ही मैं यूज करने के लिए ये क्वेश्चन आपको दे सकूं, राइट? ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. See, so x is given as 2ab upon this, and we have to find a plus x, a minus x. So what I'm saying, if from the question I can write x upon a is equal to 2b upon 1 plus b square, right? Now, from this I can apply componendo dividendo, right? If I'm applying componendo dividendo with a, so I can write dividendo componendo, you can say this is a plus x upon a minus x is equal to a is 1 plus b square plus 2b upon 1 plus b square minus 2b, right? 1 plus b square plus 2b is b plus 1 the whole square, and 1 plus b square minus 2b is b minus 1 the whole square. Okay, everyone, getting this thing? क्लास करते वक्त मोबाइल यूज करना इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, राइट? Okay, getting my point? Yes, sir. Right? So this is one of the method when like you are getting there, but ये ख्याल रखना कि यहाँ पर आने के बाद में ना एक थोड़ा कैच है क्वेश्चन में. क्या कैच है? See, if it is given this, right? मैं दोनों तरफ अंडर रूट अगर ले रहा हूँ, so this will be a plus x is in under root upon under root of a minus x is equal to under root of this is b plus 1 upon b minus 1 भी हो सकता है, and this will be b plus 1 upon 1 minus b भी possible है. Because अगर मैं कोई भी b minus 1 का अंडर रूट ले रहा हूँ, this quantity is given, and इसके अंडर रूट के लिए मैं जा रहा हूँ, तो we don't have any idea कि this value under root will be either 1 minus b और b minus 1. दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास होगी. अब इन दोनों पॉसिबिलिटी को हाउ टू डील, कैसे डील करें ये देखते हैं. अगर ये मेरे पास गिवन है, राइट, मुझे फिर से लाने हैं अंडर रूट ए प्लस एक्स के टर्म में, अगेन यूजिंग सी एंड डी, राइट? सो अंडर रूट ऑफ a plus x plus under root of a minus x upon under root of a plus x minus under root of a minus x is equals to, if I'm taking this one, the first one, right, both plus, so this will be b, but if I'm taking the second one, right, so I'll get 1 by b. So both answers are possible, right? Try this. Everyone, do one thing. Switch on camera and do it fast in 5 seconds. You have to do this. 1, 2, 3, 4, 5. Everyone, switch on your camera. सब लोग अपने अपने कैमरा ऑन करो. स्विच ऑन योर कैमरा. Do it fast. Do it fast.
Brandon, Setu, do it fast. सर x 2ab ना 2ab upon 1 plus b square. नीचे भी 2 आएगा ना. Oh sorry sir. विक्रम, परमवीर, सुरभि, आर्यन, Setu, you have 2 things there. 2 डिवाइस पर काम कर रहा है क्या? मयंक, मयंक सहाय, नो कैमरा. ये कौन सा डिवाइस है भाई जिसमें कैमरा नहीं है? सेतु, क्षितिज, जस्ट मिनट, मैं भी फोटो ले लूं जिनके जिनके ऑन नहीं है कैमराज. राइट, ये सब मेरे टाइम वेस्ट करवाते हो आप लोग. सेतु वत्सल, आर यू देयर? कैमरा ऑन नहीं होने का क्या मतलब होता है? गेम खेल रहे हैं क्या? क्या बोलते हो? या यूट्यूब चल रहा है? वेरी गुड. इतना सीरियस क्यों हो गया हो सब? थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा तो लो. हाँ, अब अच्छा लग रहा है. वेरी गुड. तो मेरे को थोड़ा सा एक शक हुआ, तो मैंने बोला कि कुछ लोगों का कैमरा ऑन करवा के देखता हूँ. उसमें कुछ लोगों का अभी भी कैमरा नहीं आ पाया है. तो आई गेस आई वाज राइट. एक चलो स्टार्ट हो जाओ आप लोग. इट्स गुड. जिनका फोटो लेना था मैंने ले लिया है. हाँ, स्टार्ट. डू इट. कैमरा ऑन रखेंगे जब तक जरूरत ना हो ऐसा कि आपको ऑफ करना पड़े. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट वन, राइट? सेकंड क्वेश्चन के लिए जाने के पहले ये एक बार देख लो सब लोग. ये देख लिया आप लोगों ने? वर्किंग इसकी नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन. सर हम लोग क्वेश्चन में ही कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते? क्वेश्चन में कैसे करेगा बेटा? किसके साथ में कंपेयर करेगा क्वेश्चन को? हाँ नहीं सर, मतलब ऐसे इक्वल टू बाय कंपोनेंट और डिविडेंड. क्या मतलब किसके साथ यूज करेगा? अच्छा, इक्वल टू साइड में कुछ नहीं रहेगा इसके है लिए? ही नहीं ना वहां तो.
Done. Yes. ये क्वेश्चन में भी अगर ध्यान दे रहे हो तो क्या हो रहा है, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में भी आपके पास स्विच ऑफ योर वीडियोस बेटा, हो गया ना। इस क्वेश्चन में भी ध्यान दोगे अगर आप, राइट, तो x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 2 ट्वाइस ऑफ ये जा रहा है ना, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो गिवन है ना, इस पर ध्यान देना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड x प्लस दिस, राइट। अगर थोड़ा सा ध्यान से इस पे वर्किंग हम लोग करें, मैं बोल सकता हूँ 2x इज इक्वल टू a माइनस बी बाई अंडर रूट ऑफ ए बी, राइट, कुछ ऐसा आ जाएगा। स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर मेरे को चाहिए, राइट, दोनों, या 2 को मैं यहाँ पर भी रखूँ तब भी चलेगा, मल्टीप्लाई बाद में करना ही पड़ेगा, राइट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी द होल स्क्वायर 4ab, राइट। कितना अच्छा अरेंजमेंट नंबर का आ रहा है ये देखना। अब यहाँ से इफ आई एम सेइंग कि मैंने दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर अपॉन 4ab प्लस 1, राइट। So what we are getting, 1 plus x square is equals to a plus b the whole square upon 4ab, right? And what I have to find under root of this? So under root of this will be
a plus b by 2 under root ab, राइट। अब ये अच्छी अरेंजमेंट एक मेरे को नंबर्स की मिल गई, राइट। 2a into this and this is given, right? x plus of this, so दोनों को अलग अलग सॉल्व करता हूँ, राइट। 1 plus x square under root into 2a, so this will be 2a a plus b by twice of under root ab, फर्स्ट इसे हमने लिख दिया, प्लस 1 upon x plus, right, x plus this, so x is 1 by 2 a minus b by twice of under root ab plus a plus b by twice of under root ab, right. So this 2a plus b, a2 will be cancelling out, ab plus 2 under root ab upon, यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करके देखूं, this will be 2a, 2 cancel out again, so what I am getting, फर्स्ट वाले से अंडर रूट ऑफ a by b प्लस अंडर रूट ऑफ b by a प्लस अंडर रूट ऑफ b by a, समथिंग लाइक दिस। सर फर्स्ट वाली इक्वेशन में ए भी तो है। यस तो 2a है। ये था क्या? हाँ अगर सर। a है तो ये कैंसल हो गया, तो अंडर रूट a ऊपर बच जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा मैं इसे एक बार और लिख देता हूँ, राइट। गेटिंग माय पॉइंट ना, सॉल्व कैसे करने हैं वो ये है पूरा, यस। and you have to be like sure about this, कैसे जाने हैं। बात समझ गया होगी कि बहुत सारे ऐसे वेरिएशन अभी हैं क्वेश्चन में जो हम लोगों को देखने होंगे, एंड यही सब धीरे 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 कैलकुलेशन क्या क्या पॉसिबल होता है उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा परफेक्ट बनाता जाऊँ, राइट। यू हैव टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 120, याद है ना, इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, 126 127, राइट। इस बार मैं, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 126 127 एंड 128, 126 127 एंड 128, बट डू इट फास्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला है, होते जाएगा, लिखते जाना, बोलना मत। सर दिख ही नहीं रहा है। अभी दिखेगा बेटा, डिवाइस चेंज करना होता है, आई गेस दिख रहा होगा सभी को। यस। सर कौन सा वाला? 126 127 एंड 128। अगर फॉर्मूला ख्याल हो तो डायरेक्टली जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे आप।
वेरी गुड, वेरी गुड. आई गेस डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर. बहुत फास्ट हो सकता है. गो फॉर द फर्स्ट वन. दिस इज 7 + 4√3, राइट? यू रिमेंबर दिस? कैसे हमने किया था? दो तरीका मैंने आपको बताया था, राइट? सर कौन सा करना? राइट, इसके लिए हम लोगों ने दो तरीके देखे थे. 7 + 4√3, राइट? 7 + 4√3 इज 2 square plus √3 square plus 2 into 2 into √3 is in the under root. So this is a square plus b square plus 2ab, right? दिख रहा होगा. a square plus b square plus 2ab is nothing but 2 plus √3 the whole square under root लगाया तो getting the answer for first one. Second one, directly you can see this is nothing but √2 minus 1. अब ध्यान देके देखो, square of this will be 3 minus 2 √2. √2 का square is 2, 1 का square is 1, and minus sign in between 2 √2, right? Go for the third one, right? This is 5 plus √3 plus √2, whole square is in under root. √3 minus √2 into √3 by 2. So this √2 will be cancelling out. This is 2 √3 into √3 by 2, right? बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं, right? But you have to be careful. हाँ, बेसिक फॉर्मूलाज याद रहें. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. राइट? नाउ थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा इस बार, राइट? इसमें दो क्वेश्चन गिवन है, इसके फोटोग्राफ जरूर लेना ना. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, राइट? बट यहाँ पर मैं चाहूँगा 132 यू आर अटेम्प्टिंग एंड 134, ओनली 2 क्वेश्चन. बट और सबके फोटोग्राफ सब जो ले लोगे, राइट? यू हैव टू अप्लाई दिस. 132 and 134 only.
ध्यान देना क्वेश्चन में क्या गिवन है 132 इज यू हैव टू फाइंड फोर्थ पावर ऑफ दिस, राइट। और फोर्थ पावर के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बट वी नो दैट, वेरी गुड आंसर। हो सकता है क्या क्वेश्चन? अब ये फोर्थ पावर के लिए व्हाट वी कैन डू, राइट, क्या पॉसिबिलिटी है फोर्थ पावर के लिए? हमारे पास कोई तरीका तो है नहीं, बट फोर्थ पावर को लाइक व्हाट वी कैन डू कि मैं दो पार्ट में अगर वर्किंग कर रहा हूं तो दोनों पार्ट में वर्किंग करने के बाद आई एम एबल टू डू समथिंग, राइट। अब दोनों पार्ट को वर्किंग करने के लिए मैंने कहा कि पहले मैं एक बार स्क्वायर रूट देखता हूँ, फिर बाद में स्क्वायर रूट देखता हूँ। सो 28 माइनस 16, 28 माइनस 2 इंटू 8 इंटू रूट 3, पावर पहले हाफ निकालता हूँ, फिर बाद में फिर एक बार पावर को हम लोग फिर से देखेंगे, राइट। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। 28 माइनस 10, ये तो 2 मेरे पास आ गया। 8 एंड रूट 3 को ऐसा मेरे को ब्रेक करना है कि स्क्वायर करने पर आई गेट द वैल्यू 28, मेरे पास वो वैल्यू 28 आ जाए, राइट। सो 8 अगर मैं क्या क्या पॉसिबिलिटी थी मेरे पास इससे ब्रेक करने की, तो फर्स्ट इज 8 एंड रूट 3, 4, 2 राइट, 4, 2 2 रूट 3, राइट, या 2 4 रूट 3, 1 8 रूट 3, ये पॉसिबिलिटीज मेरे पास थे। पर ध्यान दो 8 का स्क्वायर इज 64, ये तो 28 से बहुत बड़ा नंबर चला गया, नॉट पॉसिबल। 4 स्क्वायर इज 16, पॉसिबल है, प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 इज 12, सो ओके दिस इज वर्किंग। मतलब दिस नंबर इज कमिंग एज 4 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस साइन है, 2 रूट 3 द होल स्क्वायर, राइट। अंडर रूट 1 हटा दिया मैं, मतलब पावर 1/4 है ये, राइट। सो आई एम गेटिंग 4 माइनस 2 रूट 3 टू द पावर 1/2। फिर से एक बात वही आ गई, 4 इज द नंबर, 3 minus 1 root 3 minus 1 the whole square. 4 and 2 root 3 आ गया, means 4 minus 2 into 1 into root 3। थोड़ा सा सोच के देखता हूँ, राइट। तो 1 and root 3, तो 1 square is 1, root 3 square is 3, तो 3 plus 1 is 4, so this is root 3 square, power half will be root 3 minus 1। सो 4 डिग्री एक साथ में मैं नहीं निकाल सकता, बट उसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में मैंने पहले उसका पावर हाफ निकाला, जब वो निकल गया तो फिर उसे मैं रिड्यूस डाउन करके एक और हाफ पावर दे दिया। इज इट ओके? राइट, रूट 3 माइनस 1, वेरी गुड। अंश थोड़ा सा मिस कर गए, बट माइनस साइन के साथ वेरी गुड अंश, वेरी गुड अमन, वेरी गुड, राइट। सो नाउ अब सेकेंड वन में भी फिर कुछ वैसे ही बात है, बट डिफरेंस क्या है कि 1 2 3 4 अंडर रूट्स मेरे पास गिवन है, तो ऑब्वियसली 4 अंडर रूट को मैं एक साथ तो सॉल्व कर नहीं सकता, बट 1 by 1 मैं स्टार्ट करूंगा तो 100% आई एम एबल टू डू दिस 13 प्लस 2 root 12, 2 रूट 12, केवल इतना रखा इसे, फर्स्ट अंडर रूट हटाने पर मेरे को ये मिल रहा है। अगर मैं इसे और भी लिखना चाहूँ, अच्छी बात यह है कि रूट 12 इंटू 1 से मेरे को ये मिल गया कि ये मेरे को आंसर का फॉर्म जो है वो बड़ा सिंपल फॉर्म में आ गया, रूट 12 प्लस 1, राइट। अब इसकी वैल्यू क्योंकि आ गई, मैं इसके आगे बढ़ना चाहूँगा, सो दिस इज 5 माइनस दिस इज एन अंडर रूट, 5 माइनस 1 4 माइनस 2 रूट 3 का अंडर रूट अब आ जाएगा, राइट। इसे मैं सॉल्व करूं तो दिस इज अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला भी था, root 3 minus 1, रूट 3 माइनस 1 प्लस ये 3 है, 3 कर दिया अंडर रूट, तो 3 माइनस 1 इज 2 प्लस रूट 3 इज इन अंडर रूट, राइट। सो दिस रूट 2 प्लस रूट 2। अब यहाँ पर 2 मेरे पास प्रेजेंट नहीं है। अगर 2 प्रेजेंट नहीं है तो मैंने आपको पहले भी बताया था हाउ टू डील विद दिस, सो यू हैव टू डू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, राइट। सो दिस इज 1 by रूट 2 बाहर आ गया, एंड 4 प्लस दिस विल बी रूट 3 प्लस 1, द होल स्क्वायर इज एन अंडर रूट, सो यू आर गेटिंग रूट 3 प्लस 1 by रूट 2,
इज इट ओके? सो बात समझना, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में अब हमने जो सीखा है, जो देखा है, मे बी कि हमें वन बाय वन उन चीज़ों पर आना पड़े, राइट? एक छोटा सा सॉल्व हुआ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो नाउ यू हैव टू मिक्स अप द थिंग्स, राइट? कई लोगों के आंसर्स आज नहीं आ रहे हैं, आई एम वेरी वेरी सरप्राइज ना, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग स्टडी करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, बट बहुत very few students are giving the answers. It's not good. Expectation मेरी अधिक है. Achut, is it okay? Yes, sir. Anuj, Josel, Kusal, Mayank, Prince, Yes, sir. Understood. everyone getting this now? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ध्यान से, राइट? यू हैव टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट केयरफुल, राइट? इस बार सबके होने चाहिए, ओके? You are doing question number 133 and 131. Just I am sharing 133 and 131, ये दोनों क्वेश्चन.
Very good, very good. Let's start. Very good, Mayank. Aditya, Anmol, Ans, very good. Prince, answer भेजो Prince. Mischal, very good. Let's start. मैं करूं? होप सभी के हो गए हैं. Let's start with this one. 17 plus 288, right? First, we have to think about this number 288, right? Divisible by 4. So after dividing this by 4, this is coming as 72, right? This is 2 under root of this, right? 72 also we know that this could be divisible by 4, right? And we know that this will be divisible by 3, so this is coming as 2 into 2 into 3 into root 2, right? So from examining this one, 2 into 2 root 2 and 3, one combination is, so we know that square of 2 root 2 will be 8 and square of 3 will be 9. 9 and 8 will be 17. So this is coming as 3 plus 2 root 2 ka whole square is in under root. So this will be 3 plus 2 root 2. Hope everyone is getting this. And again, I have to apply the square formula for this. So 3 plus 2 root 2 is nothing but root 2 plus 1. Right? How many of you getting this root 2 plus 1? Write down yes in chat. Very good, very good. उदित थोड़ा फास्ट आंसर कर, लेट हो रहा है तेरा. Yes, you want to ask anything, Achuch? No sir, आंसर आया है सर. Very good, beta. Very good. Now, go for this thing, right? 9 plus 4 root 5. 9 plus 4 root 5, we know that we can justify our thing as 9 plus 2 into root 5. So I can rewrite this as root 5 plus 2, the whole square, right? Under root of this, so 17 minus 4 into root 5 plus 2, whole is in the under root. Now I have to find value of this. 17 minus 8 minus 4 root 5 is in the under root. This is 9 minus 2 into root 5 is in the under root. This is root 5 minus 2. Right, root 5 minus 2. How many of you got this answer? Write down yes. Okay, okay, very good. Very good. Subham, Chut, Rohini, very good. Purans, check karo. Sameer, Surabhi, Ayan, Alian, Jim, very good. Anmol, Tantris, Chitiz, Ans, Aman, very good. So now you are comfortable with this, right? कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन
की तरफ अब मैं जा सकता हूँ, राइट ना। तो डिफिकल्ट वन में रियली दीज आर डिफिकल्ट वन, इसको आप लोगों को पूरे नहीं करने हैं। कुछ क्वेश्चन में, यस अंश, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? और जो अभी येलो हाउस के लिए मेजर टेस्ट 2 होगा उसमें मैथ्स में क्या आएगा? बेटा आवाज बहुत धीमा आ रहा है, कम अगेन। और जो मेजर टेस्ट 2 होने वाला है उसमें मैथ्स में क्या आने वाला है? मेजर टेस्ट में बेटा यही सब आने वाले जो तुम लोगों ने पढ़ा है ना अभी तक, जितना कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने ना, यही आने वाले हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आई गेस एवरीवन इज गेटिंग दिस। इसमें कुछ होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 135, राइट, 137, 138, 140, राइट, 141। ये सब लोग फोटो लेके रख लेंगे इसके। ओके, एंड एक और क्वेश्चन 140। स्क्रीन नहीं दिख, अभी दिखेगा बेटा, टिक कर लूं पहले। यस, इतने क्वेश्चन है आपको जो मैंने यहाँ पर टिक किए हुए हैं। डन। यस। ओके, ये तो मैंने सर्च की बात की थी, हाउ टू डील विद द सर्च, हाउ टू गो विद द सर्च। एक छोटा सा टॉपिक है, यू मस्ट नो दिस टॉपिक, राइट। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इफ यू आर इन CBSE, जो भी डिफरेंट आपके ये रहे होंगे उसमें आप लोगों ने देखा होगा, राइट। व्हाट दिस पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल, राइट, पॉलिनोमियल इज द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P0 x to the power n plus P1 x to the power n minus 1 P2 up to Pn, राइट। n पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ गिवन है। ऑब्वियसली जो P0 मेरे पास गिवन है, जो कोफिशिएंट हाईएस्ट वाले जो हैं वो मेरी 0 नहीं होना चाहिए, राइट, नहीं तो उसकी डिग्री n नहीं होकर डिग्री लेसर हो जाती है। सो पॉलिनोमियल मस्ट बी in the form of this only, P0 is not equal to 0 and degree of this polynomial is known as n, right. The highest power of x in the polynomial is called the degree of the polynomial. हमेशा याद रखना, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर दिमाग में कभी कभी हम लोग मिस कर जाते हैं। This must be positive integers। जितने पावर हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास पावर में, राइट, या मिनिमम वो हो सकता है तो पावर 0 हो सकता है, वो कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन, जैसे यहाँ लास्ट में गिवन है, राइट, लास्ट में जो हमारे पास गिवन है, राइट। नाउ अब ये पॉलिनोमियल जो हमारे पास है, P0 जो वैल्यू है, जो हमारे पास x to the power n का कोफिशिएंट है, दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट x to the power n का, दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, राइट। ये लीड कर रहा है पूरे के पूरे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 0 नहीं हो सकता, √2, √3, √5 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दैट्स कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए आई कैन से कि लाइक ax plus b, what is the degree of this polynomial? ax plus b का डिग्री क्या है? डिग्री is 1, right, and coefficient of x is a, coefficient of x constant term is
B, right? Same, the second one, this is called quadratic या degree 2, third is degree 3 and so on, right? तो डिग्री फर्स्ट के लिए 1 है, सेकंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 3 है, जो भी पावर्स आपके पास आ जा रहे हैं अकॉर्डिंगली आपको वर्किंग रहती है, राइट? जल्दी से आप देख के बताओ कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, किसकी डिग्री क्या है, डू इट फास्ट। फोर्थ नहीं, fourth is not the polynomial. Why this is not the polynomial? सर क्योंकि पावर का भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। Very good. Power of x is given as 2/3, right? Integers होने चाहिए, मिनिमम हमने कहा कि 0 हो सकते हैं for constant function, right? Now फिर से एक बार आप लोगों के पास है क्वेश्चन, right? Which one? What do you think? Which one is not polynomial? Third one. थर्ड Why third is not polynomial? फ्रैक्शन। -1. Yes, sir, fraction. Power is given -1. Power is given -1 जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, right? Right? Linear polynomial. If we are talking about the linear polynomial, means the polynomial must be in the form of ax plus b, right? A may be 1, -1, 2, √2, √5, any real number except 0. Right? Second is known as quadratic polynomial. Already we have talked about this, right? The example, it could be 2x square plus or minus 5x plus or minus 7, right? Similarly for any other example. Cubic, you know this, right? This must be degree 3 and coefficient of x to the power 3 must not be equal to 0, right? Okay, everyone. Right? Biquadratic. Quadratic into power power, very good. The polynomial of degree 4. If degree 4, then this is known as biquadratic, right? X to the power 4, x cube. Okay, अगर x to the power 4 given है, x cube का कोफिशिएंट उस समय 0 हो सकता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, x का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, बट x to the power 4 का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, राइट? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी अभी बात हो रही थी, डिग्री हमारे पास 0 आ जाएगी, नंबर 3 है, 4 है, √2 है, √3 है, कुछ भी नंबर गिवन रहे, बट इन सब के टर्म में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात होती है। इक्वेशन का मतलब होता है व्हेन यू आर इक्वेटिंग दिस एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन विद अ कांस्टेंट, राइट? स्पेशली 0 के साथ में हम लोग बहुत जगह पर इसको इक्वेट करते हैं, तो दिस इज नोन एज इक्वेशन, राइट? fx पॉलिनोमियल गिवन रहेगा दैट यू आर इक्वेटिंग विथ 0, राइट? आपने 0 से इक्वेट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? डिग्री 4, राइट? सेकंड वन √3 और √10 है, x में रूट नहीं है, सो दिस इज डिग्री 3 पॉलिनोमियल, right? And this is degree 3 polynomial equation. Why equation? Because this is equating with 0, right? Okay, everyone, right? अब इसमें स्पेशल केस जो होता है वो हमारे पास केसेस होते हैं जब हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक में वी नो दैट दिस इज ax² + bx + c, जो हमारे पास टर्म्स होते हैं उसकी वर्किंग हमारे पास होती है, राइट? तो एक छोटा सा वर्किंग मैं आपको दिखाऊं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आगे क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी जब आ जाती है बेटा, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं ना। अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी जब आ जाती है ना, तो दैट्स नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? एवरीवन केयरफुल, एक बड़ा प्यारा सा चीज देखना, जब पॉलिनोमियल की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर 2 थ्योरम और हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था। सर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर एक ही होते हैं? हाँ बेटा, इमेजिनरी नंबर उसी का पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजिनरी दोनों आ जाते हैं ना। एक याद होगा आपको, आप 2 थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा था, एक था फैक्टर थ्योरम सर, और सेकंड था रिमाइंडर थ्योरम, राइट?
फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम निकालने का तरीका क्या था कि कोई भी पॉलिनोमियल जो अभी आपने देखा, पॉलिनोमियल अगर गिवन है और मैं सोच रहा हूं कि x माइनस ए, राइट, दोनों ही चीजें यहां पर मैं देखना चाहता हूं, ये इसका फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर फैक्टर है तो इसको मैंने इक्वेट किया 0 से, x की जो वैल्यू आ गई a वो मैंने पॉलिनोमियल पे रख दिया, और अगर पॉलिनोमियल पे उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो दिस इज नोन एज द फैक्टर। लेकिन यहीं पर अगर मेरी वर्किंग इस तरह के है, जब हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज नॉट कमिंग एज 0, fa इज नॉट कमिंग एज 0, सो इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू a on the polynomial and you are not getting 0, you are getting some value, obviously constant ही आएगा। अगर एक x minus a मैं रख रहा हूं तो some value constant आएगा, this is called the remainder, right? This is known as factor theorem and remainder theorem, right? अब ये factor theorem और remainder theorem में, factor में तो obviously you are always getting 0, but remainder में एक बड़ा मजेदार सा चीज आता है, क्योंकि हम लोग polynomial देख रहे हैं। If polynomial is given any degree, बहुत बड़ा डिग्री गिवन है, x to the power 5 plus 4x cube plus 6x minus 7, मान लो मैंने ये दिया, राइट? ये fx को if I am dividing by linear, राइट, तो रिमाइंडर जो बचेगा आखिरी में कांस्टेंट या तो बाई क्वाड्रेटिक बचेगा या तो क्यूबिक बचेगा या तो रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा। हमारी बात हो रही है रिमाइंडर के लिए, ना कि क्वोशेंट के लिए, राइट? रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक बच सकता है या फिर क्यूबिक बच सकता है या फिर क्वाड्रेटिक बच सकता है या फिर लीनियर बच सकता है या फिर कांस्टेंट बच सकता है। 0 कांस्टेंट होएगा, कांस्टेंट ही बचेगा। कांस्टेंट ही बचेगा। कांस्टेंट ही बचेगा, क्योंकि बार बार वो डिवाइड होते होते आखिरी में कांस्टेंट बचेगा। ये फर्स्ट थ्योरी रही है, ठीक है, ठीक है, राइट? अगर यहां पर मैं बोलता कि इसी fx को मैंने कोई क्वाड्रेटिक से इससे डिवाइड लीनियर बचेगा, तो मेरे पास लीनियर या कांस्टेंट बचेगा, या वेरी गुड, कांस्टेंट तो हो ही सकता है, लेकिन चांसेस है कि कांस्टेंट के अलावा यहां पर हमारे पास लीनियर बच जाए, राइट? अगर मैं यहीं पर बोलूं यही fx है, उसको मैंने क्यूबिक से डिवाइड किया, तब क्या बचना चाहिए रिमाइंडर? कांस्टेंट, लीनियर या क्वाड्रेटिक, राइट? क्वाड्रेटिक बचेगा या लीनियर बचेगा या कांस्टेंट बचेगा, राइट? नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन। Done everyone? यस सर। ना, अब ये पूरे को मैं अगर वर्किंग अपनी थोड़ी सी अलग करूं, आगे बढ़ाऊं, तो मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। When a polynomial is divided by x minus 1 leaves the remainder to when the same polynomial is divided by x minus 2 leaves the remainder 3. Find remainder when the polynomial is divided by x minus 1 into x minus 2. X minus 1 into x minus 2. ध्यान दें क्या है, राइट? तो हमने कोई पॉलिनोमियल लिया, राइट? मान लेता हूं ये fx एक पॉलिनोमियल है, मैंने x minus 1 से डिवाइड किया तो क्वोशेंट होगा, एंड रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। ये फर्स्ट इक्वेशन मेरा हुआ,
सेकंड इक्वेशन, इसी fx के लिए हमने कहा कि इसी को अगर मैंने x माइनस 2 से डिवाइड किया तो परसेंट कुछ और आ रहा होगा, प्लस रिमाइंडर बच रहा होगा 3। ये दो हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास ये पूरी की पूरी क्वेश्चन है, उसमें ये दो चीजें हमें गिवन है। आई गेस क्लियर टू ऑल ना। अब यहाँ पर से दो बड़ी प्यारी चीज आ सकती है, राइट। फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से f1 x को अगर मैं यहाँ पर 1 डाल दूं तो ये 1 होगा, ये 1 माइनस 1 0 इंटू दिस विल बी 0, तो f1 की वैल्यू 2 आएगी, जिसे 1 प्राइम मैंने नाम दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर सेकंड वाले में 2 डाल दूं तो ये f2 होगा, ये 0 हो जाएगा, उस समय वैल्यू 3 आएगी, इसे 2 डैश मैंने कह दिया, राइट। राइट। अब ये f1 और f2 की वैल्यूज आपके पास है, राइट। ये मेरे को इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नाउ अब यहाँ से व्हाट आई रिक्वायर्ड, जो मेरे को क्या चाहिए, तो इक्वेशन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसे देखो। बोल रहा है यही fx जो होगा, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय x माइनस 1 एंड x माइनस 2, परसेंट विल बी डिफरेंट। एंड अभी बात हुई थी, क्योंकि दिस इज द क्वाड्रेटिक, अगर ये क्वाड्रेटिक से मैं डिवाइड कर रहा हूं इस पूरे को, सो देयर मस्ट बी, द रिमाइंडर मस्ट बी सम ax प्लस b। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? ये थीम है क्वेश्चन का, ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। ओके अगर ये मेरे पास हो गया तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी बात हो जाएगी, क्या, राइट। नाउ आई हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, और मुझे हेल्प लेना है ये दो से, राइट। f1 की वैल्यू 2 है, तो अगर मैंने 1 डाल दिया तो ये तो 0 ही आ रहा है, तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 2, ये थर्ड इक्वेशन में बोल लेता हूँ। एंड अगर मैंने यहाँ 2 पुट किया, सो आई एम गेटिंग 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, ये 4 दे देता हूँ। By solving 3 and 4, you'll get the answer minus a is equal to minus 1. So a is equal to 1, b is equal to 1. A is equal to 1, b is equal to 1. I'll put the value. So I'm getting the remainder as x plus 1. Hope everyone is getting this. सर ये इक्वेशन वाला कैसे है, बताओ ना एक बार। कौन सा बेटा? लास्ट वाला सर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था ना, ध्यान दो। A polynomial is divided by x minus 1 and x minus 2, right? लास्ट लाइन देखो, x minus 1 and x minus 2 leaves the remainder। तो मैंने क्या कहा कि यही fx जो है जिसकी बात चल रही है, इसी fx को मैंने x minus 1 x minus 2 से डिवाइड किया, तो क्वेश्चन था हमारे पास f2x कुछ f3x कुछ भी बचा होगा, f3x। एंड जो अभी बात हुई थी हम लोगों की, अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा किसी पॉलिनोमियल को तो मेरे पास बचना क्या चाहिए, यहाँ जो हम लोगों ने पूरा का पूरा ये वर्किंग रखा था, राइट। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, तो दैट मस्ट बी लीनियर। तो लीनियर का फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी, तो हमने अज्यूम कर लिया ax प्लस बी। क्वेश्चन में जो गिवन था वहां से हमने पहले ही डिड्यूस कर लिया था कि f1 और f2 की वैल्यूज 2 and 3 है। ये जो मेरे पास आया है इसमें f1 और f2 दोनों की वैल्यूज हम लोग पुट करते गए एंड एक एक करके आंसर्स की तरफ आते गए। इस पे हमने पुट किया एक बार 1 एक बार 2, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व किया, a एंड b की वैल्यू पुट कर दिया फिर से ax प्लस b में, तो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू x प्लस 1। इज इट ओके? ओके सर। इज इट ओके? यस सर। यस सर। राइट, so now you all are doing question। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। एवरीवन केयरफुल। डिवाइडेड बाय
x minus 1 leaves the remainder minus 1 when divided by x minus 2 leaves the remainder 1. So find remainder when polynomial is divided by x minus 1 into x minus 2. रिमाइंडर फर्स्ट वाले में है -1, सेकंड वाले में है 1. Done. Yes, sir. आंसर लिखते जाना चैट में. रमन आंसर लिखते जाना चैट पे. कैलकुलेशन ठीक सा रखना. F1 पर you are getting -1. F2 पर you are getting 1. Very good. अमन चेक कर लो कैलकुलेशन. धनतेज वेरी गुड. कनिष्क वेरी गुड. F1 and -1 both the numbers you have. F1 पर you are getting -1, F2 पर you are getting 1. Right? दोनों को subtract कर दूं. -a is equals to -2 or a is equal to 2. b is equals to -3. So the remainder will be 2x minus 3. 2x minus 3. Okay. Okay everyone. एक और क्वेश्चन करो. राइट, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को. When divided by x plus 1 leaves the remainder minus plus 1. When divided by x minus 3 leaves the remainder 4. Right? So find polynomial when divided by x plus 1 into x minus 3.
Done. Done. Easy calculation. Very good. Santres, very good. Aman, very good. Mang, very good. Do it fast. Do it fast. See, this is x plus 1. Kanishk, very good. This is x plus 1, so I can write f of minus 1. May I'm getting 1, and f of 3, when this will be 0, so x is equal to minus 1, and x is equal to 3, I'm getting 4, right? And remainder, obviously, in this process itself, remainder will be ax plus b. After putting this value, ax plus b minus a plus b is equal to 1. Putting this value, 3a plus b is equal to 4. I have to solve both the equations. If I'm able to solve both the equations, that will be very simple. So 3a plus सर b दिख is नहीं equal रहा है. to 4. अभी दिखेगा बेटा. And minus a plus b is equal to 1. दिख रहा होगा सभी को? Yes. Plus minus minus, this will be 4a is equal to 3, a is equal to 3 by 4. Right, similarly you are getting b is equal to 7 by 4. So answer you are getting, दोनों को merge कर लेता हूँ. After merging this, write a and putting the value, 3x plus 7 divided by 4. How many of you getting this answer? Write down yes in chat. अरे वाह, वाव, ग्रेट. ये अच्छी बात हुई ना, राइट? सो जितना आज तक पढ़ाया हूँ यहीं तक आपको एग्जाम में आने होते हैं. पूरे रिवीजन अच्छे से कर लेना. मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पूरे के पूरे जो सर्ट्स दिया हुआ है, डिवीजन दिया हुआ है, एंड ये पॉलिनोमियल, राइट, ये जितने हैं इसे पूरे अच्छे से देख लेना. ये सब चीज़ें ही हैं, ये सब आपको एग्जाम में रहेंगे, राइट? मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी यू हैव टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स. हाँ, यस अनमोल? सर वेविकर मेथड नहीं आ रहा. नहीं बेटा, अभी नहीं आ रहा. थोड़ा सा वेविका का थोड़ा बहुत वो रहेगा.